Hello friends, welcome to my channel Bio Cafe. Today we are going to discuss about a new topic and the name of the topic is Mark Recapture Technique. This topic we had taken from the population ecology and it is one of the most important topic which is there for your CSIR NET as well as GATE Life Sciences examination. So let us begin with the topic. Before going to start, we should be clearing ourselves with some of the basic concepts such as population, population ecology and characteristic features of a population. So let us begin. First is your what is meant by population. So what is population? Population is all the organisms of the same group or species who live in a particular geographical area and are capable of interbreeding among themselves. Right? So this is what actually the definition for population is. तो पॉपुलेशन का कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही ग्रुप में या फिर एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं और वो अगर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रिसाइड करते हैं या रहते हैं एंड इफ़ दे आर एबल टू इंटरब्रीड यानी कि इफ़ दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन. So such group is called as a population where you can find that all the organisms are belonging to the same species or group and they are residing at a particular geographical area and they are able to reproduce among themselves. So this will actually make your population. अब population का example हम ले सकते हैं. For example lion का एक population होता है, deer का population, yes, elephant का population. So all these are the examples of population you can imagine. Then what is population ecology? So population ecology is the study of how various factors are going to affect your population growth, then rates of survival and reproduction as well as risk of extinction. तो किस तरह से इन तीनों चीज़ों को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं राइट उनके रिलेटेड जो भी स्टडी है दैट इज़ योर पॉपुलेशन इकोलॉजी. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वेरियस factors affect population growth, rates of survival and reproduction and risk of extinction. तो population growth के बारे में हम यहाँ पे brief में बात कर लेते हैं because we are going to deal it in detail in our upcoming videos, right? So population growth जो है it is determined by some of the factors जैसे कि birth rate, death rate, immigration rate, immigration rate, राइट. सो व्हाट इज़ डेथ रेट, बर्थ रेट आपको तो पता ही चल गया होगा कि कितने इंडिविजुअल्स बर्थ ले रहे हैं और कितने इंडिविजुअल्स जो है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ डेथ जा रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट is going to define the population growth. In the same way कितने species जो है वो enter हो रहे हैं population में, कितने species जो है उस population को छोड़कर जा रहे हैं, that is again going to determine the population growth. In the same way there are certain factors जो कि अपने survival as well as reproduction rate को भी affect करेंगे, right. This can be the biotic factors या फिर abiotic factors, climatic conditions, environmental conditions, resources की availability. So all these are the factors which are going to affect the rates of survival and reproduction. In the same way risk of extinction कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो कितने हद तक उसके ऊपर एक मतलब रिस्क है एक्सटिंक्शन के थ्रू जाने का, राइट. सो दिस इज़ व्हाट ऑल इज स्टडीड इन अ पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट. तो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर. नाउ व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हम देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज योर पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन साइज रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन. अगर मान लो कि इफ़ आई एम हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल्स तो 100 जो है वो उसका पॉपुलेशन साइज हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें बता रहे हो आप कि 100 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है. दैट इज़ योर पॉपुलेशन साइज. एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी भी 100 ही है बट अगर हम बात कर लेते हैं यूनिट एरिया के टर्म्स में कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 100 स्पीशीज प्रेजेंट है सो दैट इज़ योर पॉपुलेशन डेंसिटी. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट एट अ गिवन एरिया एट अ गिवन टाइम. Both these terms, that is population density and size, are related to each other and one on the other hand they are almost the same. But population size की अगर हम बात करते हैं तो here only we are considering the number of individuals. But when we are considering population density तो हम area भी consider करते हैं कि उतने area में कितने species जो है वो present होंगे. Then second is your population dispersion. Here how the population is dispersed उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज़ पॉपुलेशन डिस्पर्जन. ऑलरेडी आई हैड मेड वन वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन डिस्पर्जन. उसके लिंक मैं मेंशन कर दूंगा. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो वेर यू हैड सीन कि आपको जहाँ पे पता लगेगा
where you will be seeing that there are three types of dispersion. First is your clumped, second random, and third uniform. इस तरह से you are going to see that the populations are getting dispersed over different geographical areas, right, and they are showing different distribution patterns. Then age structure. So what is age structure of a population refers to? आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा होगा कि एज पिरामिड्स होते हैं, राइट, कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, यानी ओल्ड एज इंडिविजुअल ज़्यादा है, बट अडल्ट एंड बर्थ लेने वाले इंडिविजुअल्स बहुत कम है. तो दिस विल डिफाइन अ पर्टिकुलर एज पिरामिड. फिर इसी हिसाब से आप देखोगे कि देर आर इंडिविजुअल्स जो बर्थ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एज वेल एज जो अडल्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस, क्योंकि ओल्ड वंस की डेथ हो रही है. तो उस टाइम पे जो एज स्ट्रक्चर होगा, एज पिरामिड होगा, दैट विल बी डिफरेंट. सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन अ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ इट्स एज स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ. तो हमने बात कर ली है कि इमिग्रेशन रेट, एमिग्रेशन रेट, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी विल डिफाइन योर पॉपुलेशन ग्रोथ. देन व्हाट इज नेटैलिटी? नेटैलिटी इज द बर्थ रेट, राइट, कि बर्थ रेट यानी कि कितने रेट के अंदर वो जो इंडिविजुअल्स है वो बर्थ ले रहे हैं एक पॉपुलेशन में, दैट विल शो योर नेटैलिटी. एंड व्हाट इज मोर्टेलिटी? इट इज़ द डेथ रेट, कि एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम में डेथ हो रही है उनकी, दैट विल डिफाइन योर mortality rate of that particular population. I hope all these 6 points are now clear when we are having the characteristic features of a population. Now let us come to the point, that is population size and density. So what is population size? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. पॉपुलेशन साइज रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इट कंप्राइजेस. तो जो भी पॉपुलेशन में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, दैट विल मेक द पॉपुलेशन साइज. And what is population density? Population density is the number of individuals within a given area or volume. तो मैंने पहले ही बात की कि अगर हम पॉपुलेशन की साइज़ की बात करते हैं तो सिर्फ हम नंबर्स को देखते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वी विल कंसिडर द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑल्सो, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज़ है या कितने इंडिविजुअल्स जो है वो रह रहे या फिर उसको ऑक्यूपाई कर रहे. दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर पॉपुलेशन डेंसिटी. नाउ दिस पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज़ देयर, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर क्रूड डेंसिटी. अब क्रूड डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं. इट इज द डेंसिटी दैट इज योर नंबर और बायोमास पर टोटल स्पेस. इफ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर लैंड, अगर मेरे पास एक लैंड है और उस लैंड में एक ही कॉर्नर जो है वो स्पीशीज ने ऑक्यूपाई किया है, राइट, तो ये वाली जो क्रूड डेंसिटी है, हियर आई विल कंसिडर द एंटायर लैंड, चाहे वो लैंड कोई स्पीशीज ने ऑक्यूपाई किया हो चाहे ना किया हो, बट आई विल कंसिडर द टोटल स्पेस विच इज अवेलेबल, राइट, फॉर द स्पीशीज़. वो टोटल स्पेस मैं कंसिडर करूँगा एंड उसमें जितने भी हैं मेरे इंडिविजुअल्स, उस डेंसिटी को हम बोलेंगे आर क्रूड डेंसिटी. हियर वी आर नॉट गोइंग स्पेसिफिक. यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करते हैं. यहाँ पे जितना भी हमारे पास लैंड एरिया अवेलेबल है, वी आर कंसिडरिंग दैट टोटल स्पेस. सो इट इज़ द डेंसिटी पर टोटल स्पेस. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डेंसिटी इज योर इकोलॉजिकल डेंसिटी, और आई कैन से स्पेसिफिक और इकोनॉमिक डेंसिटी. देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक डेंसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हैबिटेट या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया को कंसिडर करेंगे, और उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है या जितने भी इंडिविजुअल्स है वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि योर बायोमास विच इज़ देयर, उन चीज़ को पूरा कैलकुलेट करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आर इकोलॉजिकल डेंसिटी, और आई कैन से स्पेसिफिक डेंसिटी और इकोनॉमिक डेंसिटी. So it is the density, that is your number or biomass per unit of habitat space, that is the available area, or I can say the volume that can be actually be colonized by the population. यानी कि सिंपल मतलब यहाँ एक ही हो रहा है. What is your ecological और specific density refers to, कि पहले हमने क्रूड डेंसिटी की बात की तो जहाँ पे हमने टोटल एरिया जो है, टोटल स्पेस जो है वो काउंट कर लिया था, कंसिडर कर लिया था. बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट में कितने और इंडिविजुअल्स या कितना बायोमास वहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकता है, दैट पर्टिकुलर डेंसिटी इज़ योर स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी. जब हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट या फिर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में, एट दैट टाइम जो डेंसिटी होती है वो कौन सी होती है, इट इज़ योर इकोलॉजिकल और आई कैन से स्पेसिफिक डेंसिटी. आई होप ऑल दिस टर्म्स आर नाउ क्लियर for you all.
अब एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, राइट। अब देखो क्रूड डेंसिटी में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मान लो इफ़ आई एम हैविंग अ ओशियन है, और उस ओशियन में इफ़ आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर फिश, मान लो कि एक कोई फिश है, उसको हम ले लेते हैं, राइट। तो अब हमने पूरा ओशियन जो है, यानी कि पूरी जो स्पेस है उसको कंसिडर कर लिया है, और हो सकता है कि ये जो फिश है वो पर्टिकुलर कॉर्नर या फिर पर्टिकुलर पोजीशन पे ही रहती हो, यानी कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहती हो ओशियन में। बट हियर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग क्रूड डेंसिटी, तो हमने पूरे ओशियन की जो स्पेस है, टोटल स्पेस, वो ले ली, कंसिडर कर लिए, एंड हमारी स्पीशीज़ कहाँ पे रह रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह रही है वहाँ। तो यहाँ पे हमने पूरा स्पेस काउंट कर लिया। बट अगर मान लो कि व्हेन वी आर हैविंग इकोलॉजिकल डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, तो एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि अगर मान लो जहाँ पे वो फिश रहती है उतने ही एरिया को मैंने कंसिडर किया है, और उतने ही एरिया में जो भी फिश पाई जा रही है वो स्पीशीज़ की, उसको मैंने लिया है। तो एट दैट टाइम दिस डेंसिटी इज कॉल्ड एज योर स्पेसिफिक डेंसिटी। हियर आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट और कंसिडर होल एरिया ऑफ द ओशन। वो जितना एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो पाए जा रहे हैं, उतना ही एरिया जो है मैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को, यानी कि इकोलॉजिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करने में यूज़ करूँगा। दैट इज़ व्हाट व्हेन वी आर हैविंग द स्पेसिफिक डेंसिटी refers to. Now how the population density is determined? Population density which is there, it is determined by two of the methods. First method which is there is your quadrant method, and second method which is there, it is your mark recapture technique or method. Mark recapture technique or method and quadrant method, these are the two methods which are useful to determine the population density, right? तो quadrant method किसके लिए यूज होता है? It is used for the sessile organism. Sessile means immobile, यानी कि जो स्टेशनरी होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो, तो एट दैट टाइम वी विल यूज द क्वाड्रेट मेथड। एंड इन क्वाड्रेट मेथड यू माइट हैव स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो कि एक स्क्वायर हम रख देते हैं, उस स्क्वायर के अंदर भी बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं, एंड हाउ फ्रिक्वेंटली अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द प्लांट और द इमोबाइल ऑर्गेनिज्म इज देयर, अगर वो वहाँ पे कितने फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है उसके नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं उतने एरिया के लिए, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी। बेसिकली क्वाड्रेट मेथड का एप्लीकेशन प्लांट पॉपुलेशन इकोलॉजी में होता है। Then second is your mark recapture technique. It is the technique used for the animals who are movable, means organisms who are movable. मूवेबल यानी कि जो भी मोबाइल ऑर्गेनिजम्स है उनको, उनकी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर उनके पॉपुलेशन साइज अगर इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट, तो एट दैट टाइम वी विल यूज दिस मार्क रिकैप्चर टेक्निक. सो लेट अस बिगिन विथ आवर टॉपिक, दैट इज मार्क रिकैप्चर टेक्निक. Mark recapture technique which is there, it is one of the technique or method used to determine the estimated population size of a particular population when it is not feasible to count it practically. अगर देखो एक पॉपुलेशन है एनिमल्स का, मान लेते हैं फिश का, तो कितनी सारी फिशेज होती है, तो आप एक एक करके एक एक फिश को काउंट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल. सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड एज मार्क रिकैप्चर टेक्निक. और मार्क रिकैप्चर टेक्निक, always you have to remember, it is for the mobile organisms. So what are the basic 4 steps which are followed in mark recapture technique? First is your capturing of the particular species. अब देखो, मान लो कि मुझे रैबिट के पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो फाइंड आउट करनी है, रैबिट के पॉपुलेशन की साइज़, राइट. तो उसके पर्टिकुलर एरिया में मैं जाऊँगा, आई विल गो टू द एरिया वेयर द रैबिट्स आर रिसाइडिंग, and then I'll collect some of the rabbits. That means I'll capture some of the rabbits. अगर मान लो कि वहाँ पे 20 थे बट मैंने 10 ले लिए, so 10 of those rabbits I have captured. So first step is the capturing, कि पहले capture करना है. And when we are capturing this species, तो वो हमारा first sample कहलाता है. क्या कहलाता है? It is our first sample. तो फर्स्ट सैम्पल क्या हुआ, जो हमने कैप्चर कर लिया पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से. अब उसमें कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, राइट. देन सेकेंड इज द मार्किंग, यानी कि मार्क लगाना है अभी. सो व्हेन आई हैव कैप्चर्ड दिस रैबिट्स, अगर मैंने उनको कैप्चर कर लिया है तो उसके ऊपर मैं मार्क लगाऊंगा. आई विल पुट सम मार्क, और आई विल पुट दिस मार्क विद द हेल्प ऑफ टैग लगाऊंगा, या फिर बैंड लगाऊंगा, या फिर आई कैन से पेंट आई विल अप्लाई, और सम अदर मेथड्स आई कैन यूज़ फॉर देयर मार्किंग पर्पस. तो मार्क लगा दिया. व्हेन आई हैव डन द मार्किंग, फिर इसके बाद ये जो भी कैप्चर किए हुए थे जिनको मैंने मार्क लगा दिए हैं, तो आई विल बी रिलीजिंग देम बैक इनटू द
एनवायरनमेंट जहाँ से मैंने उनको लिए थे वहीं मैं उनको बैक रिलीज कर दूंगा और फिर वो क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन में फिर से घुल मिल जाएंगे. देन लेटर ऑन आई विल रिकैप्चर, मैं फिर से रिकैप्चर करूंगा और ये जब मैं अभी रिकैप्चर करने वाला हूँ दैट विल बिकम माई सेकेंड सैम्पल, दैट विल बिकम माई सेकेंड सैम्पल. और इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं रिकैप्चर में वही ऑर्गेनिजम्स को रिकैप्चर करूंगा जिनके ऊपर मैंने मार्क लगाया था, नहीं. रैंडमली आई विल कलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स और द स्पीशीज और उसको मैं बोलूँगा रिकैप्चर्ड ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट स्टेप इज योर कैप्चरिंग, सेकेंड इज योर मार्किंग, थर्ड इज योर रिलीजिंग एंड फोर्थ इज योर रिकैप्चरिंग. तो पहले जो मैंने कैप्चर किया दैट इज माई फर्स्ट सैम्पल, फिर उसी फर्स्ट सैम्पल को मुझे मार्क करना है और उसी फर्स्ट सैम्पल को मुझे एनवायरमेंट में रिलीज कर देना है. देन वो अपने एनवायरमेंट में घुल जाएंगे अपने पॉपुलेशन के साथ. देन लेटर ऑन आई हैव टू टेक और आई हैव टू रिकैप्चर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उसी पॉपुलेशन में से मुझे ऑर्गेनिजम्स जो है वो वापस से रिकैप्चर कर लेने हैं. अब ये जो रिकैप्चर किए हुए मतलब ऑर्गेनिजम्स है, इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होंगे मार्क्ड और कुछ होंगे अनमार्क्ड. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द स्टेप्स विच आर बीइंग फॉलोड इन मार्क रिकैप्चर टेक्निक. आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा. Right, and right now what are the other names for your mark recapture technique? First is your mark recapture, second is your site recite, third is your mark release recapture, then capture recapture, and the last is your capture mark recapture. All these names are relating to the same technique, that is your mark recapture. तो एग्जाम में ये लोग अलग अलग नाम दे के पूछते हैं, therefore I had listed out all these names. First is your mark recapture, second is your site recite, third is your mark release recapture, fourth is your capture recapture and fifth is your capture mark recapture. तो इनमें से कोई भी एक नाम यूज हो सकता है क्वेश्चन में, so you don't have to be confused because all these terms are relating to the one technique called as mark recapture only. And ये नाम किस हिसाब से दिए हैं, जो भी हम स्टेप कैरी आउट कर रहे हैं उसी हिसाब से ये नाम जो है वो दिए हुए हैं. Then what are the steps? Already we had discussed, but let us have this thing कि जो scientist है they are using this technique for those organisms who are mobile. तो ऐसे organisms जो mobile है यानी कि fish, mammals, birds, तो इनके population की size को अगर जानना है तो we are using this technique called as mark recapture technique. And in this mark recapture technique, what the researchers are doing, they are first capturing the species. पहले वो capture कर रहे हैं and after capturing तो उसको हम क्या बोलते हैं, first sample. After capturing, we are marking them with the help of tags, band, paints and some other stuff, right? फिर इसके बाद we are releasing them back into their population जहाँ से हमने उनको collect किया था. Then later on, what we are doing is we are collecting or we are recapturing them. And अभी ये जो हमने recapture किया है from the recaptured organisms, you can find that there are certain organisms who are marked. जो हमने फर्स्ट सैंपल में मार्क किए थे वो वाले थोड़े हमें मिलेंगे और कुछ ऐसे हमें ऐसे मिलेंगे जो अनमार्क्ड हैं, राइट. सो बोथ दिस विल बी डिफाइनिंग योर सेकेंड सैंपल. तो पहला सैंपल कैप्चर के टाइम पे था और सेकेंड सैंपल हमारा रिकैप्चर के टाइम पे कहलाया. नाउ हाउ दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक. तो n विच इज देयर, कैपिटल N, इट रिप्रेजेंट्स टोटल पॉपुलेशन साइज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? That is n is equal to number of individuals marked in first sample. Number of individuals marked in first sample का मतलब क्या है कि हमने जो पहले में कैप्चर कर लिए थे वो हमारा फर्स्ट सैंपल हुआ और उसमें से भी जितने भी हमने मार्क किए वो हमारे नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स कहलाएंगे इन द फर्स्ट सैंपल, मल्टीप्लाइड विथ साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल. जो अब हम रिकैप्चर करने वाले हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंड सैंपल, राइट. तो वो सेकेंड सैंपल की साइज कितनी है यानी कि उसमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, दैट विल डिनोट योर साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेकेंड सैंपल. अब देखो जो रिकैप्चर किया था हमने तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स हु आर मार्क्ड एंड देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स हु आर अनमार्क्ड. तो इसमें हमको मार्क्ड वाले को ही कैलकुलेट करना है, राइट, यानी कि कंसिडर करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल मल्टीप्लाइड विथ साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल and overall dividing it with the number of marked individuals from the second sample. So let us have one example. मैं एक example के through आपको बता देता हूँ. Then we will see the example
जो हमारे पीपीटी में भी मेंशन्ड है. इफ आई एम हैविंग अ पॉपुलेशन, मान लेते हैं रैबिट का पॉपुलेशन है. इफ आई एम हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट, और उसको मुझे उसकी पॉपुलेशन साइज जो है वो कंसिडर करनी है. सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि फर्स्ट कैप्चर में आई हैव कैप्चर्ड 100 रैबिट्स. तो मेरा फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सैंपल साइज कितना हो गया? 100. उसमें से मैंने 100 के 100 को मार्क कर दिया है. तो 100 कैसे हो गए? मार्क्ड. आफ्टर कलेक्टिंग आई हैव मार्क्ड 100. फिर देन आई हैव रिलीज्ड देम, उसको मैंने रिलीज कर दिया है मतलब उनके एनवायरमेंट में. एंड देन आई हैव रिकैप्चर्ड लेटर ऑन, मैंने फिर क्या किया है? रिकैप्चर किया है. एंड रिकैप्चर से मुझे जो मिले हैं वो है 100 वापस से. एंड 100 मैंने रिकैप्चर किए हैं, दैट इज डिस्क्राइबिंग और दैट इज डिनोटिंग माई सेकेंड सैम्पल, राइट. तो ये मेरा जो है वो मेरा सेकेंड सैम्पल है. बट इस सेकेंड सैम्पल में आई एम हैविंग 20 इंडिविजुअल्स जो कि मार्क्ड है, राइट. एंड 80 इंडिविजुअल्स कैसे हैं? अनमार्क्ड. तो सेकेंड सैंपल मुझे कितने मिले? 100. और 100 में से कितने मार्क्ड है? 20. एंड अनमार्क्ड कितने? 80. नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला. अब मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देता हूं तो n इज इक्वल टू, n रिफर्स टू टोटल पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल. तो कितने सैंपल फर्स्ट सैंपल में कितने को हमने मार्क किया था? 100 को. सेकेंड पॉपुलेशन हमारा साइज कितना था? दैट इज रिकैप्चर के टाइम पे हमने कितने रिकैप्चर किए थे? दैट इज 100. और इसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड फ्रॉम द सेकेंड सैंपल, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स जिसके ऊपर भी मार्क्ड है सेकेंड सैंपल में से, उनको हमें कंसिडर करना है. तो हमने देखा था कि रिकैप्चर किए थे 100, उसमें से मार्क्ड कितने थे? 20. और 80 कैसे थे? अनमार्क्ड. तो हियर वी हैव टू कंसिडर ओनली द मार्क्ड वंस. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट 20. तो नाउ इफ वी कैलकुलेट तो क्या आएगा आंसर? इट विल कम अराउंड 500. तो वो रैबिट की पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन साइज कितनी हुई? इट इज़ अराउंड 500. नाउ आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. सो फर्स्ट we have to consider the marked individuals from the first sample, then we have to multiply it with the second sample size, then overall we have to divide it with the marked individuals from the second sample. Now let us look for the example इन लोगों ने वही दिया हुआ है यहाँ पर, बट थोड़ी वैल्यूज चेंज हुई है. हियर दे हैव कंसिडर्ड कि 80 डियर्स जो है उन लोगों ने कैप्चर किए, साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने 80 डियर्स कैप्चर किए. तो दैट इज माय फर्स्ट सैंपल साइज, राइट. फिर इसके बाद दे हैव रिलीज्ड दिस 80 कैप्चर्ड डियर्स विद द मार्किंग, मार्क लगाने के बाद इनको रिलीज कर दिया उनके पॉपुलेशन में. एंड अगेन दे हैड रिकैप्चर्ड, और जब इन लोगों ने रिकैप्चर किया तो कितने रिकैप्चर किए? 100. तो 100 बिकम्स माय सेकेंड सैंपल साइज, 80 बिकम्स माय फर्स्ट सैंपल साइज. अब ये लोगों ने जो 100 रिकैप्चर किए थे, आउट ऑफ विच 20 वर मार्क्ड. 20 कैसे थे? मार्क्ड थे. और 80 कैसे थे? अनमार्क्ड. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल multiplied by size of the second sample and divided by number of marked individuals from the second sample. तो अगर हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं तो 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 विल गिव यू 400. तो इस पॉपुलेशन की साइज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? इट विल बी अराउंड 400. 400 कैसे आया? देखो 80 उन लोगों ने कैप्चर किए थे, तो वो हमारा फर्स्ट सैंपल हुआ, इसलिए हमने वहाँ 80 लिखा. देन इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमने जब रिकैप्चर किया तो हमने 100 जो स्पीशीज है उनको रिकैप्चर किया था. सो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली माई सेकेंड सैंपल साइज. अब उसी 100 में से कितने मार्क्ड है? 20. तो इसीलिए हमने नीचे जो है वो 20 मेंशन किया हुआ है. एंड बाय कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स वी आर कमिंग अक्रॉस दैट 400 इज द वैल्यू दैट इज कमिंग फॉर द पॉपुलेशन साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर डियर, राइट. आई होप कि अभी आपको ये सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी. इन CSIR NET दे आर फ्रीक्वेंटली आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दे आर डायरेक्टली गिविंग द वैल्यू कि कैप्चर किए थे यानी फर्स्ट सैंपल साइज, फिर उसको मार्क किया, देन दे हैड रिलीज्ड, फिर उसके बाद रिकैप्चर किया यानी कि योर सेकेंड सैंपल साइज. एंड उसी सेकेंड सैंपल साइज में से वो आपको वैल्यू भी दे देंगे कि कितने मार्क्ड है और कितने अनमार्क्ड है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू place the value within this formula and you will get the population size.
सो दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन योर एग्जामिनेशन एंड बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जो है वो आते हुए दिखे हैं. सो prepare this topic well for your CSIR NET examination. I hope all the terms are now clear. If you had liked my video, then please hit the like button, subscribe, share, and if you are having any sort of doubts, then you can ask me in the comment box. Thank you for watching. Keep sharing. Stay healthy. Thank you.